हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर IIT NIT Cell and I am Sandeep Patil. So, the तीसरा third trend in periodic properties. The first we have discussed atomic radius. The second one electronegativity. The third is today's topic. The third trend, that is ionization enthalpy, or it is also called as ionization potential, ionization enthalpy or ionization potential. So let us first define ionization enthalpy यानी क्या देखेंगे. तो अभी एक बात करते हैं हम. वन थिंग वी विल डिस्कस कि ये सोचिए एटम का न्यूक्लियस है, isn't it? So this is the first shell, second shell, और एक एटम आपने लिया है, उसका आउटर मोस्ट शेल थर्ड शेल है. सपोज वन एटम यू हैव टेकन एंड इट कंटेन्स 3 shells, राइट? तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो दैट इज मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज most loosely held electron because it is away from the nucleus. So suppose we want to remove that outermost electron. When we remove this electron from this neutral atom, all right, it is not a charged atom, it is not an ion, but we are going to convert it into ion. क्या कर रहे हैं हम? उसमें से एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसको आयन बना रहे हैं, आयन कैटायन बना रहे हैं. सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द सिंपल वेरी सिंपल डेफिनेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो the minimum amount of energy required to remove an electron from an, क्या condition दिया है? From an isolated, from, so the outermost electron of an isolated neutral gaseous atom. These conditions are given. Why the atom should be isolated? The atom should be single. It should not be in a group or it should not be in a molecule. क्योंकि अगर मॉलिक्यूल में रहेगा तो दूसरे एटम का उस पर क्या रहेगा? इन्फ्लुएंस रहेगा. तो therefore whenever a single atom is taken, it should be neutral, that means not charged. It should be isolated यानी separated, and it should be in gaseous state. Because always remember, when we take any substance in solid or liquid form, it will have interaction with other atoms or substances. They are very closely attached. एक एटम दूसरे एटम से ऐसे क्लोजली अटॅच्ड राहणार कधी? सॉलिड लिक्विड असेल तर. गॅशियस विल बी सेपरेट. सिंगल ॲटमचा एक्झिस्टन्स कधी असतो? single atom when they will exist, when they are gaseous. So साध्या भाषेत बोलायचं झालं, शेवटच्या शेल मधला इलेक्ट्रॉन काढून टाकण्यासाठी जी एनर्जी लागते, दॅट इज आयोनायझेशन एन्थाल्पी. एन्थाल्पी हा एनर्जीचा इक्विव्हॅलंट शब्द आहे. एन्थाल्पी हा थर्मोडायनामिक्सचा शब्द. थर्मोडायनामिक्स वी आर गोइंग टू लर्न, राईट? थर्मोडायनामिक्स मधून हा शब्द घेतलेला आहे, दॅट इज एन्थाल्पी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी और पोटेंशियल. आयोनायझेशन एन्थाल्पी और आयोनायझेशन एनर्जी और आयोनायझेशन पोटेंशियल. IP म्हणजे आयोनायझेशन पोटेंशियल, IE म्हणजे आयोनायझेशन एनर्जी. सो repeat the definition with me. What is ionization enthalpy? The third periodic table, the third periodic property, that is ionization enthalpy we are discussing. First you have discussed atomic radius,
second you have discussed that is, I think, electronegativity, and the third we are discussing ionization enthalpy, the amount of minimum, the minimum amount of energy which is required to remove the most loosely bound electron, ऐसा तो बोलो, या outermost electron. Outermost electron is most loosely bound electron. So to remove that most loosely bound electron or the outermost electron, जो भी एनर्जी लगने वाली है उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, isn't it? Now next part, इसमें क्या आएगा? दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है पूरा 12th स्टैंडर्ड में बेसिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हियर दे विल बी ऑलवेज आस्किंग यू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. Now after ionization enthalpy, I will speak about what is successive ionization enthalpies, or IE1 first ionization enthalpy, IE2 second ionization enthalpy, IE3 third ionization enthalpy. What do you mean by first, second, third ionization enthalpies? Successive ionization enthalpy yani IE1, IE2, IE3. Let us see what is IE1, IE2, IE3. Let us see. Now, you have defined what is ionization enthalpy. Now we will define what are successive ionization enthalpies. What are successive? एक के बाद एक, उसको सक्सेसिव बोलते हैं. और आपको मालूम है सक्सेसर्स. आर यू गेटिंग इट? सक्सेसर आपको मालूम है, isn't it? Do you know that? छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सक्सेसर्स है संभाजी महाराज. वैसे छत्रपति शाहू, isn't it? So that is a successor. The next one, the generation next. वैसे ionization enthalpy 1, IE1, IE2, IE3. Let us see. Okay, here ionization enthalpy, that is a first ionization enthalpy. What is first ionization enthalpy? Let us see. Suppose this is a metal. So you are taking this metal not in solid. We know that metals, most of the metals are in solid state. But for the purpose of studying ionization enthalpy, we are taking that metal in a gaseous state. So metal in this gaseous state, it will lose one electron. एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. सो एक इलेक्ट्रॉन दिया. ओके, सो ये एक इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज IE1. दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. या IP लिखोगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है वो. सो अगेन फ्रॉम दिस नाउ मेटल पॉजिटिव, अनदर इलेक्ट्रॉन इफ यू रिमूव, इट विल बिकम M++ या +2 प्लस E-. सो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसको बोलेंगे IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और अभी साहब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो M+2 में से तीसरा निकाला तो दिस विल बी M+3 प्लस E-. सो IE2. Always remember one thing. For the lifetime you remember this thing. For the lifetime means 11th 12th कॉम्पिटिटिव के लिए ये हमारा कॉम्पिटिटिव का लाइफ टाइम है. और इसमें आप प्लीज रिमेंबर ऑलवेज द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द सेकेंड. दैट मीन्स IE3 will be greater than IE2 will be greater than IE1 in all the cases. No much exceptions will be there. But let us see what is why this ionization enthalpy 3 is greater than 2 and then very less ionization enthalpy first.
सो अभी इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो फ्रॉम दिस मेटल एटम, व्हेन यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यू आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम. न्यूट्रल एटम यानी क्या? व्हाट इज न्यूट्रल एटम? दैट इज number of protons, number of positive charges is equal to the number of negative charges. So positive के बराबर नेगेटिव है. So एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये m प्लस बन गया. अभी देखिए इधर पॉजिटिव चार्जेस बड़े हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज घट गए. सो इफ द पॉजिटिव चार्ज इज मोर, इट विल हेल्ड दोज एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली. यानी फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, सोचिए हमने लिया ये मेटल एक बनाते हैं हम, एक वन मेटल एल्यूमिनियम ले लिया. एल्यूमिनियम, हाँ, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम? He, LiBBCNOF neon, Narayan Magashi Ala, Al is 13. So 13. So gully number 1, gully number 2, gully number 3, 2 8 3. So पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. फिर इधर 3 इलेक्ट्रॉन है ना, सेकेंड, थर्ड, ऐसे. Let us see which ionization enthalpy will be more and why. So एल्यूमिनियम का हम ऐसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम. तो पहला इलेक्ट्रॉन साहब निकल चुका, Al प्लस प्लस E माइनस. सो अभी देखिए इसमें 13, पहला न्यूट्रल एल्यूमिनियम है, तो न्यूट्रल एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑलराइट. अभी Al प्लस में से और इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इट विल बिकम Al प्लस प्लस. इस केस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो 13 है लेकिन 13 है, 12 इलेक्ट्रॉन्स are there. So this 13 protons will tightly hold that 12 electrons, and it will be now difficult to remove the second electron. पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका सर, क्यों? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन. अभी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है. प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा. ठीक है. अभी देखिए थर्ड केस में, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में प्रोटॉन तो साहब 13 ही है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 11. सो 11 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन जब खींचेंगे, यस और नो, तो व्हेन दे विल पुल दैट 11 electron, the nuclear charge or nuclear pull will be more, and therefore to remove that outermost electron, अगर nuclear charge, this is a nuclear charge positive, इसका pull outermost electron पर ज्यादा, so it will be very difficult to remove this outermost electron. Very difficult to remove this outermost electron means more energy is required. More energy is required means more ionization enthalpy, isn't it? Yes. Now you understood what is ionization enthalpy or ionization potential, and you understood that the third ionization enthalpy is greater than the second, and second ionization enthalpy is greater than the first. Those are called as successive, एक के बाद एक आने वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पीज. राइट. अभी हर बार की तरह आप पढ़ोगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टी. एक बच्चों आप याद रखो इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑल दीज 3 are following the same trend. लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसा ही ट्रेंड फॉलो करता है. लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज. व्हाई? वी विल सी इट. लेट अस सी.
उसके लिए हमको देखना पड़ेगा क्या, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी फेमस. नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू. फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन क्या, एंथैल्पी. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये मैं क्या करूंगा अभी, साथ साथ में पढ़ाऊंगा अभी. आयोनाइज फैक्टर्स अफेक्टिंग और ट्रेंड. लेट अस सी. नाउ फर्स्ट ट्रेंड वी विल सी इन अ पीरियड. पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते वक्त क्या होता है, whether it is going to increase or it is going to decrease. So period में, in a period in the periodic table, when you go from left to right, what happens? factors देखो पहला atomic radius decreases. लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो एटॉमिक रेडियस कम होगा. अगर एटॉमिक रेडियस कम हुआ तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा न्यूक्लियर पुल के जगह पर, या प्रोटॉन के नजदीक आ जाएगा. सो व्हाट विल हैपन टेल मी. सो दैट पुल विल इंक्रीज. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. So atomic radius decreases, ionization enthalpy increases along a period. अभी देखिए, along a period left to right जाते समय न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, because atomic number is increasing. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, so न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो पुल और बढ़ा तो क्या होता है, ionization enthalpy will increase. So nuclear charge increases, ionization enthalpy also increases. Overall हम बताएंगे साहब, ionization enthalpy increases along a period from left to right, isn't it? Yes. Now next one, in a group what happens to the ionization enthalpy? In a group, what happens to the ionization enthalpy? In a group, top to bottom आप जा रहे हो, so top to bottom जाते वक्त atomic radius बढ़ता है. atomic radius बढ़ेगा तो क्या होगा, पहला इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना, तो साइजेस बढ़ते जाएंगे. साइज बढ़ता जाएगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर जाएगा. सो आसानी से खिसक जाएगा. फिर आर यू गेटिंग? इवन इफ द न्यूक्लियर चार्ज हैज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है तो भी वो बड़ा हुआ जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उसको, उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल नहीं करता. व्हाई? द साइज हैज इंक्रीज्ड. दिस यू हैव टू रिमेंबर, isn't it? So you understood, in a group from top to bottom atomic radius increases, ionization enthalpy decreases. समझ में आई बात? Understood? Isn't it? Okay. So this is a trend, and I am always saying electronegativity, ionization enthalpy, electron affinity, they will follow the same path. Top to bottom decrease होंगे, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगे साहब. Isn't it? Did you understand? Okay. और कॉम्पिटिटिव के लिए और छोटी छोटी सी बातें हम करेंगे इसमें, छोटी सी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिली थिंग्स हैं लेकिन इम्पैक्ट उनका बहुत रहता है. इफ यू डोंट नो दिस, यू कैनॉट मेक केमिस्ट्री इजी. तो आपको रटना पड़ेगा. अगर रटोगे तो नहीं पढ़ोगे. रटना इज वेरी 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 बैड थिंग. समझ लेने का, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने का है. इज़न्ट इट? सो इसके लिए हमको थोड़ी ट्रिक्स बनाने होंगे. आर यू गेटिंग? यस. नाउ अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स
आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो दो चीजें हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स इसमें हम m will give you m plus e minus। सो इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय दैट मेटल। सो जब भी कोई भी एक सिस्टम है, एलिमेंट है या कंपाउंड है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उसका एंथैल्पी जो बोलते हैं ना, डेल्टा एच बोलते हैं उसको, डेल्टा एच। सो एनर्जी इज एब्जॉर्ब, द प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स इनसाइड, थर्मा मीन्स हीट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सो हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब, सो उसको डेल्टा एच पॉजिटिव बताते हैं। डेल्टा एच इज पॉजिटिव है। और अगर हीट इवॉल्व हुआ, मानिए कि हीट इवॉल्व हो गया, सो एलिमेंट ने जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो हीट इज रिलीज्ड, सो दैट डेल्टा एच इज निगेटिव। हीट एब्जॉर्ब हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच इज पॉजिटिव। हीट इज इवॉल्व्ड, so it is a exothermic, exhaust outside. So all this you will learn detail in thermodynamics. मैं तो अभी झलक दिखला रहा हूं। मुझे इधर ये बताना है कि आपका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू आने वाली है, that will be always positive, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब पॉजिटिव, एनर्जी इवॉल्व नेगेटिव। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये बात याद रखो आप, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो एंडोथर्मिक है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हेंस देयरफॉर डेल्टा एच इज पॉजिटिव। जब भी सिस्टम को हीट मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हीट निकाल दोगे तो टुस नेगेटिव हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज आई डिस्कस्ड अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और अभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस आने वाले हैं साहब। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम बोल रहे हैं लेफ्ट टू राइट क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा, लेकिन कुछ बीच में इर्रेगुलरिटीज आते हैं, और जो भी इर्रेगुलरिटी या एबनॉर्मल थिंग है वो कॉम्पिटिटिव के लिए पूछते हैं। रेगुलर ट्रेंड ठीक है, रेगुलर ट्रेंड बोर्ड में पूछा, थ्योरी में पूछा, लेकिन हटके जो बात है ना वो पूछेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए। ऑलराइट, अभी आज का सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही कमाल का ये कर रहे हैं, फॉलोअप बहुत ही अच्छा है उनका। ऑलवेज दे आर सीइंग द वीडियोस, दे आर टेकिंग पॉज, दे आर गिविंग द आंसर्स। मेनी आर देयर ओके। वो शिवानी बुशरा करके लड़की है, ओके, और कुछ कुंभार है, रोहित है। so many children are coming now. I am finding out they are taking interest. That is very important. All right, take interest, solve the problems. All right, and then मैं देख रहा हूँ कौन कौन कैसे कैसे छुड़ा रहा है, क्या आंसर्स दे रहा है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू फॉलोइंग दिस? सो लेट अस सी श्योर. अभी तो सभी बच्चों के नाम मुझे याद नहीं, तो भी मैं बताता जाऊंगा. सो रेगुलरली रेगुलर है, रेगुलरली इरेगुलर नहीं, रेगुलरली रेगुलर. ऑलराइट, हियर आज का क्वेश्चन है, तो आपको बताना है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट विथ हाईएस्ट, पहला क्वेश्चन विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरा एलिमेंट विथ लोएस्ट
लोवेस्ट आई आयोनायझेशन एन्थाल्पी. आई कधीच विसरायचं नाही. आर यू गेटिंग दिस? आयोनायझेशन एन्थाल्पी यू हॅव टू टेल मी लोएस्ट एंड हाईएस्ट. राइट. तो मैं आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या भिखारी उसके बारे में बोलूंगा. द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, द मोस्ट भिखारी इज मिस्टर फ्लोरीन, फकीर. मिस्टर फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है साहब? हेलिना का रूबी से फ्रेंडशिप. तो एफआर तो फ्रेंसियम बहुत ही रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है, तो हम सीजियम या केजियम सीएस को लेंगे. ओके. हेलिना का रूबी से सीएस इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव and fluorine is most electronegative element in the periodic table. वैसे आपको आज के सवाल में बताना है आई हाईएस्ट, आई लोएस्ट. आई यानी आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी. कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग.